हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। लास्ट वीडियो हमने बात की थी सरफेस टेंशन के बारे में और अब उससे आगे बढ़ रहे हैं एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सरफेस एनर्जी इन दिस वीडियो एंड वी आर गोइंग टू डिड्यूस द रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन की वजह से जो भी फ्री सरफेस होती है लिक्विड की, दैट इज ऑलवेज श्रिंकिंग, that always tries to attain minimum surface area. So let's consider a liquid first in order to understand what is surface energy. So let's consider a liquid enclosed in a vessel, और इस लिक्विड की एक सरफेस फिल्म भी कंसिडर कर लेते हैं और लेबल कर देते हैं एज पी क्यू आर एंड एस. Now, this molecules which are there in PQRS are going to be acted upon by a resultant downward force. So, due to which they are going to have greater potential energy. So, potential energy और system को stabilize करने के लिए ये minimum surface area try करता है acquire करने के लिए. अगर हम assume करें हमें PQRS surface film का area increase करना है, एरिया इंक्रीज करने के लिए हमें कोई मॉलिक्यूल इंटीरियर ऑफ लिक्विड से सरफेस फिल्म में लाना पड़ेगा. सो कंसिडर मॉलिक्यूल ए जिसे हमें PQRS में लेके आना है ताकि उसका सरफेस एरिया इंक्रीज कर सके. In order to bring A in the surface film, we are going to do some work. Now, this work done on A is getting stored as potential energy in A. In A, it's getting stored as the potential energy. So the molecules which are there in PQRS is going to have more energy as compared to the molecules in the interior. Let's suppose ये A को आप surface film के अंदर ले गए. So no longer A is here. There is a molecule B now here. A पर आपने कुछ काम किया and you took A to PQRS by performing work on it. Now in comparison to B, A is going to possess an extra amount of energy. That extra amount of energy which contributed in increasing the surface area of PQRS is termed as surface energy. So surface energy basically is वर्क डन जो हमने ए पर किया, वर्क डन डिवाइडेड बाय इंक्रीज इन सरफेस एरिया. क्योंकि ए PQRS में चला गया तो सरफेस फिल्म का एरिया बढ़ गया और A possessed now an extra amount of energy. So surface energy is nothing but extra amount of energy. It's the extra amount of energy possessed by the molecules of surface film per unit area. So again I'm repeating, A molecule पहले इंटीरियर में था, अब A सरफेस फिल्म में चला गया तो A की एनर्जी अगर B से कंपेयर करें, A की एनर्जी ज्यादा है क्योंकि हमने उस पर काम किया है and that work is getting stored as its potential energy. So B possesses less amount of energy. जो जितने भी molecules PQRS के अंदर है उनकी एनर्जी इंटीरियर मॉलिक्यूल्स जो है उनसे कम है. That extra amount of energy possessed by the molecules of surface film per unit area is called as surface energy. I hope the concept of surface energy is clear. Now let's move to the second objective, which is to deduce the relation between surface energy and surface tension. इसको समझने के लिए हम एक hollow rectangular फ्रेम लेने वाले हैं
Let's label this rectangular frame as PQRS. ये एक रेक्टेंगुलर फ्रेम ले लिया है. PQRS is basically a hollow rectangular frame जिसमें जो आर्म PQ है that is movable. ये मूव कर सकती है. So what we are going to do now is इस रेक्टेंगुलर फ्रेम PQRS को हम सोप सोल्यूशन में डिप कर देंगे. We are going to dip this in a soap solution. अब जैसे ही सोप सोल्यूशन में डिप करेंगे एक सोप फिल्म बन जाएगी. यहां पर एक सोप फिल्म बन जाएगी इस रेक्टेंगल के ऊपर. और PQ क्योंकि मूव कर सकता है ये यहां अंदर की तरफ मूव कर जाएगा, अंदर की तरफ शिफ्ट करेगा ड्यू टू सरफेस टेंशन एक्टिंग ऑन इट. ठीक है, हमने PQ एक रेक्टेंगुलर फ्रेम लिया, उसको सोप सोल्यूशन में डिप किया, एक सोप फिल्म बन गई. और PQ क्योंकि मूव कर सकता था ये अंदर की तरफ मूव कर जाएगा बाय द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड्स सरफेस टेंशन. अब यहां पर जो सरफेस टेंशन है ये एक तो सामने की तरफ लगेगी, एक पीछे की तरफ भी लगेगी, बिकॉज देयर आर टू फ्री सर्फेसेस. सोप फिल्म जो है वो बीच में बनी है उस हॉलो रीजन में. तो सरफेस टेंशन जो सोप सोल्यूशन है वो और वेपर स्टेट एक सामने की तरफ है, एक पीछे की तरफ है. सोप और वेपर स्टेट, तो दो जगहों पर आपकी सरफेस टेंशन लग रही है. नाउ लेट्स सपोज इस PQ आर्म को हमें यहां मूव करना है P', Q' पर. And the length of this is L and we wish to just move this by the amount of X. अगर हमें इस PQ आर्म को P', Q' पे लाना है तो हमें इस सरफेस टेंशन के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा. So force required to move PQ to PQ' should at least be equal to सिग्मा L. कहां से आया ये? हमने सरफेस टेंशन डिफाइन की थी फोर्स पर यूनिट लेंथ, राइट. अब मैंने क्या कहा कि एक सोप और वेपर स्टेट आगे की तरफ है, एक पीछे की तरफ है, तो दो जगह सरफेस टेंशन लग रही है. तो यहां पे एक फैक्टर आ जाएगा 2 का. तो यानी कि फोर्स जो PQ को PQ' में चाहिए मूव करने के लिए वो एटलीस्ट इक्वल होनी चाहिए बाय ट्वाइस ऑफ सिग्मा L. ठीक है. So how much work we are going to do in this movement? So work done in moving PQ to PQ' since displacement x की है, so work done हो जाएगा F into x which is 2 sigma LX. और इस PQ को PQ' पे लाने के लिए इंक्रीज भी हो रहा है कुछ एरिया में. कितना सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहे हैं हम, तो वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं. इंक्रीज इन surface area will be equal to length into x Lx, right? प्लस एक आगे की तरफ सरफेस एरिया इंक्रीज है, एक पीछे की तरफ, तो यहाँ पे 2 का फैक्टर और आ जाएगा. सो इंक्रीज इन सरफेस एरिया इज 2 Lx. अगेन फोर्स है 2 सिग्मा L, वर्क डन हो गया 2 सिग्मा Lx, एरिया इंक्रीज हो गया 2 Lx. ठीक है. तो सरफेस एनर्जी कैसे डिफाइन किया था? सरफेस एनर्जी जब डिफाइन किया था वी सेड दैट सरफेस एनर्जी इज वर्क डन divided by increase in surface area. So work done we found out is 2 sigma Lx and increase in area was 2 Lx. So let's just simplify. We get surface energy equal to sigma, which is surface tension. So our surface energy is numerically equal to surface tension. So इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही.
We'll do more concepts of properties of fluids in the upcoming videos. Thank you and subscribe to my channel.